Hello. So, in this video, we are going to talk about the roadmap of web development. And when I talk about roadmap, you will be thinking कि sir roadmap तो सब बताते हैं, roadmap का क्या है? But I'm not talking about, I'm not going to talk about the general roadmap that पहले आपको ये करना ये करना. I'm going to talk about that what mistake you should avoid while you are doing the same path that you need to follow. I'm going to cover the path as well from my experience because I am in the industry from past 4 years and I have been with few of the brightest mind in the web development, right? So from their experience as well or from their conversation, I'll pick a few pointers and I'll integrate in this video. So first I need to put more focus on the primary thing that you need to do is build foundation. So when you talk about build foundation, so let me just use my pen tab for that. So when you talk about foundation, the foundation means whenever you are building any building, for example, you are making a large building or a skyscraper, you need to have a strong foundation for that. So if the foundation is strong, you can lay multi-floor building like third floor, fourth floor, and whatever you want. And when you talk about the technical terms of this, so when your foundation is strong, you can build any framework, you can use any framework, you can use any library, you can use any tech stack when your core is strong. So before you start with the web development, the first thing that you need to understand is the networking. So everybody think कि computer network is something that मुझे क्यों करना है, कंप्यूटर फंडामेंटल्स मुझे क्यों करना है, मुझे क्यों समझना है HTTP, मुझे तो सिर्फ HTML CSS और JS से काम है. क्योंकि जितने भी वीडियोस आप देखोगे, ट्यूटोरियल्स आप देखोगे, उसमें ये कहा जाता है कि चलो डायरेक्टली शुरू करते हैं HTML से, बहुत कम टाइम है, 1 महीने में आपको फुल स्टैक डेवलपर बनाना है. ऐसा नहीं होता. व्हेन यू वांट टू यूज शॉर्टकट तो उसका रिजल्ट भी फिर शॉर्ट टर्म वाला ही होगा. यू कैन नॉट बी गोइंग टू यूज मल्टीपल फ्रेमवर्क विद दैट पर्टिकुलर ट्रिक, राइट? अगर आपको मल्टीपल फ्रेमवर्क के साथ काम करना है क्योंकि आपको लंबे टाइम तक मार्केट में रहना है, अगर इंडस्ट्री में रहना है, देन यू हैव टू हैव अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन. तो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन सबसे पहले आता है इंटरनेट एंड वेब बेसिक्स. तो व्हेन वेब बेसिक्स का अगर मैं बात करूं, तो अगर मैं इसको समझाने की कोशिश करूं आपको, तो जो वेब बेसिक है वो जनरली काम कैसे करता है. अगर मैंने तुमसे कहा कि आपको सबसे पहले जानने की जरूरत है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर को, क्या होता है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, क्यों यूज करते हैं, कौन सा पार्ट कौन प्ले करता है, क्लाइंट क्या है, सर्वर क्या है, एपीआई कैसे काम करती है, दोज काइंड ऑफ टर्मिनोलॉजी यू नीड टू बी अवेयर ऑफ. एंड द सेकंड पॉइंट इज HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल. डेटा कैसे फ्लो होता है, तो आप सोचोगे HTTP तो हमारे काम का नहीं है. आई नो कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, उसका मतलब बस दैट्स इट. नहीं, दैट इज समथिंग व्हेनेवर यू गोइंग टू यूज APIs. जब भी आप किसी एप्लीकेशन API यूज करेंगे, यू विल बी यूजिंग HTTP हैज हेडर्स, राइट? You will be using headers, you will be using footers, you will be using multiple things, and in case of headers, the HTTP comes into picture. And then for example, आपने कोड बनाना सीख लिया, you know internet web basics, आपको समझ में आता है DBMS, आपको समझ में आता है नेटवर्क्स, आपको समझ में आता है फाउंडेशन, CPU कैसे काम करता है, सारे ऑपरेशन आपको आते हैं. देन आता है आपके कोड को मैनेज करना. द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज that is called Git and GitHub, right? You might be using Mercurial, you might be using any other platform to manage your repository, manage your code, but the code optimization and code management should be flawless. When there might be cases कि आप एक बहुत अच्छे कोडर है, कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितने बड़े कोडर हैं, आप 10 साल से काम कर रहे हैं, 15 साल से काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में, अगर आपका कोड मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, you will not be considered as a good coder. Because एक अच्छे कोडर का निशानी होता है कि अगर उसका कोड उसका द्वारा लिखा गया है, उसने लिखा हुआ है, उसका कोड को कोई बच्चा भी समझ सकता है. बच्चा इन द सेंस जो बिगिनर आ रहा होगा मार्केट में, जो इंटर्न आ रहा होगा, वो भी उसके कोड को समझता है. कितना आसान कोड, इतना ऑप्टिमाइज कोड लिखा जाए और फ्यूचरिस्टिक कोड लिखा जाता है. ऐसा नहीं है कि मैंने आज फंक्शन लिख दिया है, वो 2 साल बाद फिर से दोबारा लिखना पड़ रहा है. नहीं, इफ़ आई एम राइटिंग फंक्शन, आई विल बी रिमेंबरिंग कि 2 साल बाद इसकी ऑप्टिमाइजेशन कैसे रहेगी, उस हिसाब से मैं अपने फंक्शन को डिज़ाइन करूँगा. देन आता है पहला पॉइंट जिसको हम लोग स्ट्रक्चर कहते हैं. अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर जिसको बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ वेब डेवलपमेंट भी कहते हैं. तो अगर मैं बिल्डिंग ब्लॉक्स की बात करूं तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसका नाम है HTML. HTML को जनरली कहा जाता है कि बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ
वेबसाइट है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको एक मकान बनाने के लिए कुछ ईंट्स और ब्रिक्स की रिक्वायरमेंट होती है, सेम पर्पस के लिए आपको HTML के टैग्स दैट इज कॉल्ड टैग्स एंड एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। Without those you will not be able to build your application or your website. Okay, then when you are done with this HTML part, move to CSS. And what is CSS is used for? Is for styling, right? And there are multiple alternative to styling, or there are multiple framework that is in the market now. Then you can use like Tailwind, Bootstrap, or Material UI, ZCN, Daisy UI. There are multiple framework, multiple component library that you don't need to worry about कि मुझे CSS करना क्यों, क्योंकि ये एक CSS के लिए आपको इतना समझने की या चिंता करने की जरूरत नहीं होती है जनरली, क्योंकि CSS के बहुत सारे अल्टरनेटिव, बट HTML का अभी तक कोई अल्टरनेटिव नहीं है। हैव टू अंडरस्टैंड द HTML। और लोग कहते हैं HTML का इमेज पढ़ना है, बस इमेज टैग आ गया, H1 आ गया, पैराग्राफ आ गया। नहीं, आपको कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट भी होता है, लाइक असेसिबिलिटीज। आपको पता होना चाहिए असेसिबिलिटी कैसे काम करता है, कैनवास कैसे काम करता है। दीज आर फ्यू कॉन्सेप्ट जो HTML में भी एडवांस होते हैं, जो नॉर्मल बच्चे को समझ नहीं आते हैं। नॉर्मल जो स्टूडेंट होता है, जो परस्यू करना चाहता है अपना वेब डेवलपमेंट का जर्नी, वो उसको इग्नोर कर देता है कि अभी देखेंगे बाद में, कि अभी मेरे काम का नहीं है असेसिबिलिटी। बट व्हेन यू सिट इन द इंटरव्यू, व्हेन यू फेस इंटरव्यूअर, एंड I'll take the best example. There is one candidate of mine which I have trained. उसको सब कुछ आता था, उसने इंटरव्यू में उसने पेपर पे कोड लिखाया, उसने लिख दिया, कार्ड बनवाने की कोशिश की, उसने बना दिया। बट वेयर ही लैग्ड, उससे पूछा गया कि क्या आप इसमें असेसिबिलिटी ऐड कर सकते हैं। जनरली मैंने उसको असेसिबिलिटी पढ़ाया था कि आरिया लेबल्स क्या होते हैं, रोल्स कैसे डिफाइन किए जाते हैं, बट वो पेपर पे उसको डिफाइन नहीं कर पाया। दैट मीन्स उसे क्या पता था कि सर ने ये पढ़ाया, मैंने उसे बताया था कि एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, उसको इंटरव्यू में पूछा जाता है, तो उसे लगा कि बस सर ने एडवांस कॉन्सेप्ट की तरह पढ़ा दिया, इसको उतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है, कोई नहीं पूछेगा HTML। बट ये पूछा जाता है और जनरली स्टूडेंट यहाँ पे लैग करते हैं। तो आपको ये गलती नहीं दोहरानी है, आपको HTML में सारे कॉन्सेप्ट कवर करके चलने हैं। लाइक मोस्ट इंपॉर्टेंट असेसिबिलिटी आपको ध्यान देना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं द सोल ऑफ द वेब डेवलपमेंट दैट इज कॉल्ड जावास्क्रिप्ट, राइट। इसके बिना आपका कुछ नहीं हो सकता। और जनरली जो स्टूडेंट मिस्टेक करता है वो यहीं पे करता है। वो क्या सोचता है कि बट जल्दी जल्दी जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उनको कर लेता हूँ, उसके बाद सीधा फ्रेमवर्क पे जंप कर जाएंगे और जब जरूरत पड़ेगी वैसा सीखते रहेंगे। जनरली ये माइंडसेट रहता है स्टूडेंट का कि जब जरूरत पड़ेगी तो सीखते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। यू डोंट हैव टू रश द जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट इज द कोर ऑफ ईच एंड एवरी फ्रेमवर्क, वेदर इट्स रिएक्ट, Angular, Vue, 3.js, Next.js, Next.js, Angular, ना आप you name the framework, वहाँ पे वेब डेवलपमेंट में JavaScript will be the common thing. और if you are talking about JavaScript full stack, तो JavaScript में कौन से वो कॉन्सेप्ट हैं जो आपको बिल्कुल मिस नहीं करने। जनरली आपको मिस तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं करना है। फ्रॉम द GEC दैट इज ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेस्ट से लगाकर आपको कॉल बैक, प्रोमिसेस, असिंक एंड अवेट, फैच, पूरा एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग और मॉडर्न जावास्क्रिप्ट अच्छे से आना, जिसको हम ES6 जावास्क्रिप्ट कहते हैं, वो आपको अच्छे से आना चाहिए। व्हेन यू आर इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग ऑफ जावास्क्रिप्ट, प्लीज मेक श्योर करें आप रश ना करें और छोटे छोटे टास्क पर फोकस करें। व्हेन आई टॉक अबाउट छोटे छोटे यानी मिनी टास्क, दैट मीन्स फॉर एग्जाम्पल आप डॉम पढ़ रहे हैं, राइट। व्हेन यू आर इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग डॉम में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। डॉम के साथ इवेंट लिसनर्स भी चलते हैं। इवेंट लिसनर का इंटीग्रल पार्ट है डेलीगेशन, बबलिंग, कैप्चरिंग। दीज आर द कॉन्सेप्ट जो छोटे छोटे आपको दिखाई देते हैं कि भाई बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट, बट आज आप उसको इंप्लीमेंट करने जाते हो, देयर आर ट्रिकी कॉन्सेप्ट। अगर आपको उसके फाउंडेशन के बारे में जानकारी नहीं है, यू विल नॉट बी एबल टू इंप्लीमेंट दोस कॉन्सेप्ट इन इंटरव्यू। और जनरली आपको थ्योरी नहीं पूछता है आजकल इंटरव्यू में, क्योंकि आजकल के इंटरव्यू भी स्मार्ट हो गए। दे डोंट आस्क फॉर MDN थ्योरी, उन्हें पता है कि सबको पता होता है, बट जनरली व्हाट दे गो फॉर कि आप इंप्लीमेंट करके दिखा दो। तो ठीक है, अगर मैं इंप्लीमेंटेशन की बात करूं तो जावास्क्रिप्ट में आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है वो है डॉम, कॉलबैक्स, प्रोमिसेस, और rather than promises there is asynchronous program. The whole asynchronous program is must to do. Async and await, currying, closures, these are the concept जो from the basics to the advanced ये आपको आने ही चाहिए। और आने चाहिए का मतलब आपको पूरी तरीके से आने चाहिए। आपको कभी भी कोई भी कोड लिखवाने को बोल दो, you will be able to do it. Then तब हम मूव करते हैं किसी फ्रेमवर्क की तरफ। अब बात आती है फ्रेमवर्क सिलेक्शन की, कि फ्रेमवर्क को कैसे सिलेक्ट किया जाए। तो फ्रेमवर्क सिलेक्शन इज नॉट समथिंग दैट यू शुड वरी अबाउट। फ्रेमवर्क सिलेक्ट करने दो आप कंपनी को, फ्रेमवर्क सिलेक्ट करने दो आप इंडस्ट्री को,
आप कोर पे फोकस करो। अगर आपका कोर स्ट्रांग है, कोई भी फ्रेमवर्क, कोई भी लाइब्रेरी आपको परेशान करने वाली नहीं है, चाहे वो रिएक्ट जेएस हो जो कि ट्रेंड में रहने वाली है। तो अगर मैं 2026 की बात करूं तो जनरली क्या होता है कि रिएक्ट इज समथिंग दैट इज गोइंग टू स्टे इन द मार्केट। ऐसा नहीं है कि आज रिएक्ट है अगले साल नहीं होगी। नेक्स्ट जीएस बहुत पहले से चल रहा है, काफी टाइम हो गया नेक्स्ट जीएस को। स्टिल रिएक्ट 2025 में पॉपुलर थी, 2026 में ही पॉपुलर रहने वाली है एंड 27 में ही पॉपुलर रहने वाली है। ऐसा नहीं है कि रिएक्ट नेक्स्ट जीएस के आने से रिएक्ट जीएस, क्योंकि नेक्स्ट जीएस भी बिहाइंड द सीन फ्रंट एंड के लिए रिएक्ट जीएस ही यूज कर रहा है, राइट। तो आप कोई भी लाइब्रेरी एक पकड़ सकते हैं, फ्रेमवर्क को एक पकड़ सकते हैं। आप प्रेफरली गो विद रिएक्ट एज कंपेयर टू अदर फ्रेमवर्क। लेस कॉम्प्लेक्स है, ज्यादा आसान है और ज्यादा कॉन्सेप्ट को कवर करता है। जब आप एक बार स्टेट मैनेजमेंट सीख जाएंगे अच्छे से, आप हुक सीख जाएंगे अच्छे से, आप रेंडरिंग सीख जाएंगे, राउटिंग सीख जाएंगे, सब कुछ सीख जाएंगे, देन इट इज अ वे इजियर टू शिफ्ट फ्रेमवर्क। जब आप डायरेक्टली किसी फ्रेमवर्क के बीच में स्विच करने की कोशिश करते हैं, देयर इज अ कॉम्प्लेक्सिटी दैट कम इनटू पिक्चर। तो आप सबसे पहले एक फ्रेमवर्क पकड़िए, चाहे वो रिएक्ट हो, चाहे वो एंगुलर हो, कोई भी एक फ्रेमवर्क पकड़िए, उसको अच्छे से करिए, एंड टू एंड करिए। जब आप एक फ्रेमवर्क को अच्छे से कर लेते हैं, देन इट इज मच इजियर टू शिफ्ट बिटवीन फ्रेमवर्क। जनरली आप जब स्टार्टिंग के करियर में हो तो आप बचिए इस चीज़ से कि आपको फ्रेमवर्क स्विच नहीं करना है। ऐसा नहीं है आपके दोस्त ने कहा कि आज एंगुलर करते हैं, कल किसी ने कहा नेक्स्ट करते हैं, किसी ने कहा कि रिएक्ट कर लेते हैं, नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको जनरली एक फ्रेमवर्क पे स्टिक करना है, उसको कंप्लीटली डन करना है, उस पर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स बनाने हैं। देन आपको बहुत आसानी रहेगी किसी दूसरे फ्रेमवर्क में काम करने के लिए। जब मैं अगर पर्सनली मैं अपनी बात करूँ तो जब मैं करियर के स्टार्टिंग में था तो पहले मैंने PHP किया था, फिर लारावेल कर लिया। फिर मेरे दोस्त ने कहा कि भाई यार HTML CSS JS कर लो, अच्छा नौकरी मिलता है। मैंने ठीक है भाई कर लेते हैं। उस चक्कर में जल्दी जल्दी रिएक्ट पे फोकस करना था तो मैंने जावास्क्रिप्ट बस रश कर दिया। लेकिन बाद में जब इंडस्ट्री में आया, जब कोड लिखना स्टार्ट किया तो मुझे पता लगा भाई रिएक्ट तो तुम तब कर पाओगे जब तुम्हारा जावास्क्रिप्ट स्ट्रांग हो। फिर वही बात जो मैं पॉइंटर रिपीट कर रहा था कि कोर जो है ना, उस पर आपको वैल्यू देना है, उस पर आपको टाइम देना है, एफर्ट देना है, उसके बाद बहुत आसान होता है किसी भी फ्रेमवर्क पे मूव करना। देन हम बात करते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं कि अब फ्रंट एंड में जब आपने एक लाइब्रेरी चूज कर ली, इट कैन बी अ रिएक्ट जो कि अभी डोमिनेटिंग है, इट कैन बी अ नेक्स्ट जेएस एज अ फ्रेमवर्क, व्यू हो सकता है, एंगुलर हो सकता है। देन फॉर कंपोनेंट्स, आप कंपोनेंट पिक करने के लिए अगर आप पूछें कि कंपोनेंट के लिए हम कौन कौन से फ्रेमवर्क यूज कर सकते हैं, टेलबिंड है, ठीक है, ZCN है। अगर कंपोनेंट लाइब्रेरीज की बात करूँ, ZCN है, मटेरियल UI है, चक्रा UI है और डेजी UI, ये बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं, बहुत सारी कंपोनेंट लाइब्रेरी हैं जो आपको मार्केट में मिल जाएंगी और वो ट्रेंड के साथ आती रहती है। बट उसमें सब कुछ क्या है, वो टेलबिंड के कोर पे ही बना होता है एंड इट इज़ वे ईजियर टू लर्न, उसके बारे में चिंता नहीं करनी है। देन बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, दैट इज बैक एंड डेवलपमेंट। आपने फ्रंट एंड बना लिया, आपको जावास्क्रिप्ट आ गया, आपको रिएक्ट आ गया, परफेक्टली फाइन। देन विदाउट आपने क्लाइंट साइड पे कोडिंग करना सीख लिया, बट जब आप सर्वर साइड की बात करते हैं, व्हेन यू कम ऑन द बैक एंड मेकिंग सर्वर्स, मेकिंग API, देयर इज द कॉम्प्लेक्सिटी सेटल्स। क्योंकि क्लाइंट साइड पर कोड लिखना, हाँ कुछ लोग कहते हैं क्लाइंट साइड पर कोड लिखना ज़्यादा आसान है एज कम्पेयर टू सर्वर साइड, बट इन माई ओपिनियन यस, सर्वर साइड इज ईजी, बैकएंड बनाना ज़्यादा आसान है क्योंकि वहाँ पे चीज़ें कुछ SOPs के साथ चलती हैं। बट अगर आपका कोर, फिर से वही बात, अगर आपका कोर स्ट्रांग नहीं है, आप वहाँ भी लैग करेंगे, आप फ्रंट एंड में भी लैग करेंगे, हर जगह। तो अगर मैं बैकएंड डेवलपमेंट की बात करूँ जनरली, तो बैकएंड डेवलपमेंट में चाहे वो लैंग्वेज हो, चाहे वो फ्रेमवर्क हो, फिर से वही कोर। अगर आप इन केस ऑफ मर्न की बात करेंगे तो वहाँ Node.js होता है। अगर मैं Node.js की बात करूँ, फिर से वही जावास्क्रिप्ट। अगर मैं एक्सप्रेस की बात करूँ, फिर से जावास्क्रिप्ट। अगर मैं नेस्ट की बात करूँ, फिर से जावास्क्रिप्ट। तो आप किसी भी फ्रेमवर्क को पकड़िए, अंडर द हुड आप किस पे काम कर रहे होंगे। अगर आप एक्सप्रेस की बात करेंगे, आप एक्सप्रेस हम जब जनरली यूज करते हैं API बनाने के लिए या सर्वर बनाने के लिए, तो हम उसमें क्या यूज कर रहे हैं, HTTP का मेथड। जो इंटीग्रल पार्ट किसका है, Node.js का। तो फिर से वही Node.js, जो कोर कॉन्सेप्ट इज समथिंग दैट इज गोइंग टू स्टे इन द मार्केट एंड there are fewer of the technology that is coming nowadays, that is one of the my favorite is Dino and Bun, right? These are the fewer tech stack that is coming up and that is going to be in the market in the few years. अभी भी यूज कर रहे हैं लोग, बट अभी उतना ट्रेंड नहीं है, अभी उतना क्रेज नहीं है उसका, क्योंकि जैसे 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 मार्केट में उसकी कंपेटेबिलिटी, जैसे जैसे मार्केट में लोगों को पता लगेगा, Dino and Bun भी गोइंग टू स्टे इन द मार्केट एज वेल। एंड नाउ अगर हम बैकएंड के राइटिंग की बात करें, जब आप बैकएंड लिखने जाते हैं, देयर आर वन पॉइंट दैट आई वांट टू ऐड इन फ्रंट एंड एज वेल, जिसको बोलते हैं टाइप्ड, जो स्ट्रिक्टली टाइप जो लैंग्वेज है, दैट इज टाइपस्क्रिप्ट। आप अगर एक बार जावास्क्रिप्ट कर लें तो देयर इज अ माय सजेशन, पर्सनल सजेशन दैट आई हैव फेल्ट इन द करियर,
कि आपको जो इंडस्ट्री में प्रोजेक्ट लिखे जाते हैं वो टाइपस्क्रिप्ट पे लिखे जाते हैं। अगर वो जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी या जावास्क्रिप्ट के किसी भी कंपोनेंट में बन रहा है तो जनरली जो लैंग्वेज वो यूज़ करते हैं वो स्ट्रिक्टली टाइप करते हैं, जिससे मार्जिन ऑफ एरर होता है वो खत्म हो जाता है कि वहाँ गलती की गुंजाइश नहीं है, आप सेफ कोड लिख सकते हैं। तो कभी भी आप बैकएंड लिखें, खासकर बैकएंड, कोशिश करें कि आप टाइपस्क्रिप्ट जो बैकएंड है वो लिखें। एंड देन जब आप बैकएंड लिख लिए, देन आपको रिक्वायरमेंट होगा एपीआईज लिखने का भी, जैसे फ्रंट एंड को बैकएंड से कनेक्ट करने के लिए, डेटा लाने के लिए थर्ड पार्टी से। उसके लिए आप ऑब्वियसली हम लोग यूज़ करते हैं क्या, REST APIs, RESTful architecture, and there is a GraphQL as well, gRPCs as well, and the trending one that is WebSocket जो real time conversation के लिए यूज़ करते हैं। These are the few pointers that you have to work upon। ऐसा नहीं है कि आपको REST आता है, आप GraphQL के बारे में बिल्कुल ही नहीं जानते हैं, या gRPC के बारे में नहीं जानते हैं, या आपने WebSocket को बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया। नहीं, ये पॉइंटर्स आपको एटलीस्ट, अगर आपको RESTful आता है, आपको SOAP के बारे में पता होना चाहिए, राइट, आपको GraphQL के बारे में पता होना चाहिए, आपको gRCP के बारे में पता होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि आपको सब आना चाहिए, बट जब आप फाउंडेशन पर काम करते हैं, देयर इज समथिंग, कंपनी का कोई फिक्स नहीं होता है कि आप जब एक कंपनी में जाएंगे तो ये कंपनी सिर्फ रेस्टफुल एपीआई पे ही काम करती है, या कंपनी सिर्फ एंगुलर पे ही काम करेगी, या रिएक्ट पे ही काम करेगी। देयर आर जो प्रोजेक्ट बेसिस पे जो कंपनियां हायर करती हैं, जो स्टार्टअप्स हायर करते हैं, आज वो रिएक्ट पे काम कर रहे हैं, कल वो कोई और टेक स्टैक पे काम करने लग जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपको वहाँ रहना है या तो आप निकलो कंपनी स्विच करो, तो हर 6 महीने में 1 साल में कंपनी स्विच करते रहो। अगर आपको स्टे करना है तो यू हैव टू कीप अपडेटिंग योरसेल्फ। तो आपको इस रेस्ट हो गया, ग्राफक्यूएल हो गया, जीआरपीसीज हो गया एंड वेब सॉकेट्स के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है। देन आता है सबसे इंपॉर्टेंट इन द बैकएंड, दैट इज कॉल्ड ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन। देयर आर few libraries for authentication authorization. One of my favorite is JWT, एंड अब OAuth भी है, जिसको हम लॉगिन विद गूगल वाला जो ट्रेंड होता है वो भी कर सकते हैं। JWT हुआ, इनकी बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, कैसे आप डेटा को इनक्रिप्ट रख सकते हैं, कैसे आप टोकन बना सकते हैं, कैसे आप टोकन को असाइन करना है, कंपेयर कराना है, जिससे आप एक एंड टू एंड सिक्योर एप्लीकेशन क्लाइंट को प्रोवाइड कर पाएँ। तो ये था बैकएंड का बात। जब आप फ्रंट एंड हो गया आपका बैकएंड हो गया, तब आप बात करते हैं थर्ड पॉइंटर्स की, जिसका नाम है डेटाबेसेस। तो डेटाबेस इज समथिंग दैट टोटली डिपेंड ऑन द यूज केसेस, इफ आई बी वेरी ऑनेस्ट। तो डेटाबेस की अगर मैं बात करूं, डेटाबेस समथिंग दैट इज यू कैन कॉल इट अ पर्सपेक्टिव बेसिस एंड यूज केस बेसिस। अगर आपका यूज सीक्वल डेटाबेसेस पे है तो आप सीक्वल डेटाबेसेस पर रहेंगे। अगर आपको नो सीक्वल डेटाबेस का रिक्वायरमेंट आ गया तो देन नो सीक्वल पे आप डेटा यूज कर सकते हैं। तो अगर आप सीक्वल डेटाबेसेस पे काम कर रहे हैं, जनरली इंटरव्यू में सीक्वल पूछता ही पूछता है। अगर आप, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, आई आल्सो आस्क सीक्वल क्वेश्चंस, क्वेरीज फ्रॉम माय कैंडिडेट्स कि ये क्या है। आपको डीबीएम, जो मैंने कंप्यूटर फंडामेंटल्स की बात की, तो जो पहले पॉइंटर्स में कि आपको डीबीएमएस के बारे में थोड़ा सा जानकारी होना जरूरी है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो इट कैन बी सीक्वल, इट कैन बी आरडीबीएमएस, इट कैन बी एनीथिंग, नो सीक्वल एज वेल, बट जनरली हम लोग मंस्टैक में नो सीक्वल से डील करते हैं, दैट इज MongoDB। इट इज मच ईजियर टू एंड मच कंपेटेबल विद Node.js एंड ईजियर टू लर्न एज कम्पेयर टू सीक्वल डेटाबेसेस। एंड अगर आप सीक्वल डेटाबेसेस की बात करें, देयर इज अ वन दैट इज किंग ऑफ सीक्वल डेटाबेस, दैट इज कॉल्ड Postgres. PostgreSQL is something that you can work upon if you are comfortable with SQL databases. And when you talk about NoSQL databases, there is a database that I already talked about. It is called MongoDB. I will not be saying it the king of NoSQL databases because it doesn't have the as efficient caching as Redis. तो I'll be going with Redis कि इसके अंदर थोड़ा सा कैशिंग ज़्यादा बेटर मिल जाता है हमको, तो आपका जो एप्लीकेशन वो थोड़ा फास्ट होता है, ठीक है। एंड अगर इन दोनों के अलावा भी देयर आर फ्यूअर डेटाबेसेस जो अभी ट्रेंड में आने, इसको नियोन कहते हैं, सुपाबेस हुआ, ये टाइप के जो डेटाबेसेस हैं, ये भी आप चेकआउट कर सकते हैं। बट ये आप तभी कर सकते हैं, आई रिपीट इट अगेन, सॉरी टू रिपीट इट अगेन, बट वही बात है, आप ये चीज़ तभी कर पाएंगे जब आपको उसके कोर का नॉलेज, अगर आपको डीबीएमएस नहीं आता, आपको क्वेरी लिखना नहीं आता, आपको सिलेक्ट समझ नहीं आता, आपको वेयर क्लॉज समझ नहीं आते, तो आप चाहे नो सीक्वल यूज़ करें, चाहे सीक्वल यूज़ करें, चाहे रेडिस यूज़ करें, चाहे पोस्टस्केल यूज़ करें, आप नियोन यूज़ करें, सुपरबेस, डजंट मैटर, आप फिर से स्टक कर जाएंगे। फिर से बीच में जब कोई दिक्कत आएगी, जब आप कोई एरर बग सॉल्व कर रहे होंगे, फिर से आप फंसे, क्योंकि आपका कोर स्ट्रांग नहीं है। तो सबसे पहले आप कोर पे काम करिए, देन आप शिफ्ट करिए किसी भी डेटाबेस में। वो आप डिसाइड नहीं करते, कंपनी बताती है आपको कि हमें कौन से डेटाबेसेस पे काम करना है, राइट। तो देन जो डेटाबेसेस में आपको स्किल्स रिक्वायर होती हैं, वो फ्योर ऑफ द स्किल में आपको बता, जैसे इंडेक्सिंग हुआ, इंडेक्सिंग किसे कहते हैं, क्यों जरूरी है, क्या करना है। देन ट्रांजेक्शन क्या है, कैसे करते हैं, रोल बैक्स कैसे करते हैं, कैसे इसको सिक्योर बनाते हैं, डेडलॉक्स कैसे प्रिवेंट करते हैं, एंड हाउ टू राइट ऑप्टिमाइज क्वेरी।
There is a one called brute force, that is called optimized approach. So when you are writing a query for databases, how you can write a optimized query, that is something. तो अभी तक हमने कवर क्या कर लिया कि हमने फ्रंट एंड समझ लिया, हमने बैक एंड समझ लिया, हमने डेटाबेस समझ लिया. तो जनरली जो कहने को होता है कि यहाँ आपका वेब डेवलपमेंट इज समथिंग जो खत्म हो गया. तो जो मैं बात कर रहा था कि आपको लग रहा होगा कि आपने फ्रंट एंड कर लिया, HTML CSS JS कर लिया, रिएक्ट कर लिया, नोड कर लिया, एक्सप्रेस कर लिया, MongoDB कर लिया और बस हमारा फुल स्टैक हो गया. नहीं, यू आर मिसगाइडेड टिल नाउ. लेट मी क्लियर दिस पर्टिकुलर डाउट एंड मिसकंसेप्शन कि सिर्फ फ्रंट एंड, जिसको हम FE बोलते हैं, प्लस बैक एंड प्लस डेटाबेसेस इज नॉट इक्वल टू फुल स्टैक. दिस इज नॉट फुल स्टैक. ठीक है. Full stack is something when you include cloud as well, right? There might be a first time आप सुन रहे होंगे अच्छा cloud भी full stack का part है. Yes, when you are deploying your code, when you are developing your code, is completely fine, everybody can do that. But can you do the scalability? Can you do the scalability of application? जहाँ पे scalability of application की बात करते हैं वहाँ cloud आता है, राइट. आप अपने कोड को डिप्लॉय कर रहे हैं, आप अपने कोड को ऑप्टिमाइज तरीके से डिप्लॉय कर रहे हैं, आप कोड को मैनेज अच्छे से कर रहे हैं, उस पर रेगुलर अपडेट्स लेके आ रहे हैं. दैट इज समथिंग दैट इज पार्ट ऑफ क्लाउड. तो क्लाउड में अगर मैं बात करूं तो आपको CI/CD पाइपलाइंस के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है. अगर आपको CI/CD के बारे में नॉलेज नहीं है, आप अपने क्लाइंट को कभी भी रेगुलर अपडेट दे ही नहीं पाएंगे. चाहे वो एप्लीकेशन हो, चाहे वो अपडेट्स हो, आप नहीं दे सकते. क्योंकि हाउ यू आर गोइंग टू इंटीग्रेट इट. CI/CD दैट मीन्स कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन एंड कंटिन्यूअस डिलीवरी और डिप्लॉयमेंट. दैट इज समथिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द बेसिक पर्सपेक्टिव आई एम टॉकिंग अबाउट. एंड व्हेन यू आर डन विद CI/CD पाइपलाइन, गो विद डॉकर, लाइक कंटेनराइजेशन जिसको बोलते हैं. गो विद डॉकर, क्यूबरनेटिस. आई एम नॉट सेइंग कि गो इनटू डीप, गो विद बेसिक्स पार्ट एज वेल, बट डू अंडरस्टैंड द डॉकर. कैसे कंटेनराइजेशन होता है, क्या इमेज होता है, कैसे उसको बनाते हैं, ठीक, कैसे उसको दोनों आपके फ्रंट एंड और बैक एंड को एक साथ रख के एक ही इमेज को आप रन करा सकते हैं, राइट. एंड उसके अलावा आप किसी भी एक क्लाउड सर्विसेज लाइक AWS हो गया, दैट्स कंप्लीट डिपेंड ऑन योर चॉइस. AWS हो गया, GCP हो गया और Azure हो गया. किसी भी एक सर्विस को चुन के आप इसमें एक्सपर्टीज ले सकते हैं, सर्टिफिकेशंस ले सकते हैं और समझ सकते हैं कि इनका यूज करके आप कैसे अपने एप्लीकेशन को स्केल और डिप्लॉय कर सकते हैं. देन आता है आपका लॉगिंग, कि अगर आपका एक एप्लीकेशन बन चुका है, आपका एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट हो चुका है, आपका एप्लीकेशन स्केल हो रहा है, बट आप उसको मॉनिटर कैसे करेंगे. तो मॉनिटरिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन इज समथिंग दैट किसी भी एप्लीकेशन वो कंटिन्यूस ऑर्डर में चलता रहता है. तो जब आप इतना सब कर लेते हैं, देन यू कैन कॉल कि हाँ मैंने फुल स्टैक की जर्नी कवर कर ली है. एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स कम्स विद प्रैक्टिस. जब आप बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट बनाते हैं, बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस पे काम करते हैं, एरर्स आते हैं, आप उसको डिबग करते हैं. ऐसा कहा जाता है इंडस्ट्री में कि डिबगिंग इज फार मोर इंपॉर्टेंट देन कोडिंग. कोडिंग तो आजकल क्या कर रहा है आपका Amazon Q भी कर दे रहा है, कंपनियां यूज कर रही हैं. Amazon Q हो गया, आपका गूगल क्लाउड जेमिनाई होगा, क्लॉड हो गया, बहुत सारे MCPs एजेंट हैं जो अच्छे से कोडिंग, हमसे बेहतर कोडिंग लिख सकते हैं. बट जब उनका कोड आप लिखा हुआ देखेंगे, देयर इज सेइंग कि अगर आप खुद से कोड लिख रहे हैं तो आप एक बार देखिएगा, जब आप AI से कोड लिख रहे हैं तो उसे 4 बार रिव्यू करिए बिफोर मर्जिंग इट टू मेन ब्रांच. बिकॉज द कोड दे राइट, एजेंट राइट, कैन नॉट बी trusted. Yes, they write optimized code, they write good code, but this code can be directly pushed into your main branch or main code base? No, never. So when you are doing something using AI or something like, there are people call ना कि भाई AI job खा जाएगा something. AI 4 साल से चल रहा है, 2-3 साल से चल रहा है, अभी तक किसी का जॉब नहीं खाया. आई एम नॉट सेइंग कि खाया नहीं है फ्रेंड. अब तुम बेसिक ही अगर HTML CSS JS की बात करोगे, दैट इज समथिंग दैट वी कैन नॉट कॉल स्किल. कि अगर आप HTML CSS JS करके बोलोगे मेरी नौकरी ChatGPT खा जाएगा, दैट इज यू आर जोकिंग, राइट. क्योंकि उतना दैट इज नॉट समथिंग दैट इज कम्स अंडर डेवलपमेंट का अम्ब्रेला. डेवलपमेंट का अम्ब्रेला बहुत बड़ा है और फुल स्टैक का अम्ब्रेला तो उससे भी बड़ा है, राइट. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस कि आपने डिप्लॉयमेंट सीख लिया, आपने डेवऑप्स सीख लिया, आपने क्लाउड कर लिया, आपने फ्रंट एंड बैक एंड कर लिया, दैट इज समथिंग कॉल्ड एडवांस स्किल. There is something apart from these phenomena, apart from these skills, there are few of the skills that you need to incorporate in your skill set. Then you can call it a full stack journey. That is AI integration as well. That I was talking about. कह रहा था कि भाई AI यूज नहीं करनी है जनरली, बट द ट्रेंड ऐसा है कि एवरीबडी इज यूजिंग जेमिनाई, क्लॉड और बहुत सारे एजेंट्स यूज कर रहा है. ChatGPT के बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं.
बट आपको अपने एप्लीकेशन उसको कैसे इंटीग्रेट करना है, लैंग चेन किसे कहते हैं, AI ड्रिवन एप्स कैसे बनाना होता है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या हुआ, ये आर फ्यू आर द टॉपिक्स दैट यू शुड बी अवेयर ऑफ। क्योंकि ट्रेंड के साथ अगर ट्रेंड का जनरली एक मीनिंग होता है कि आपको डे टू डे बेसिस पे अपडेट रहना पड़ता है, खासकर ये टेक फील्ड जो है ना, दैट इज समथिंग दैट जो डिमांड करती है कि आप अपडेट रहें, रेगुलर बेसिस पे आप आर्टिकल्स पढ़ें, रेगुलर बेसिस पे आप नोट्स पढ़ें, देखें, न्यूज़ में रहें कि हाँ क्या हो रहा है, कौन सी नई चीज़ आई है, क्या डिस्कार्ड हो गया है, राइट। Then again, one of the last and one of the important pointer is soft skill. When you come with when you have the skill, when you have the full stack journey, but if you don't want to don't know how to present it, don't know how to speak about it, you don't know how to write clean code, you don't know how to write optimized code, how to describe your code. There are few people that can write a good code, but when you are going to ask them na ki, can you explain this code, they are like, oh, I have to explain it, yeah, I don't know, I have written it. That is not something you need to do. When you are writing code, please follow few of the principle, that is a dry principle hua, and there is a generic term called KISS principle, that is keep it simple stupid, right? So these are the principle that you can follow to write cleaner code and optimize code. And when it comes to last part, testing is also something that comes under the full stack umbrella. Few of the test case you have to write, that is called unit testing, or some of the test cases you need to write for your code. And again, if I talk about, that can be a long video, but system design is also that comes under full stack. When you are designing backend, you are deciding tech stack, you are deciding which database to use, right? That is part of system design as well, how to choose tech stack, how to select the databases on the basis of operations, what kind of operation we want, and then we select the databases on the basis of that requirement, right? So when you are done with all those stack, all those technical concept, and apart from that, you know soft skills, you know how to speak about your code, you know how to present, then you can call yourself that is full stack. But अगर आप इसको सोचेंगे, आप कहेंगे सर ये तो बहुत लंबा कॉन्सेप्ट हो गया, बहुत ज़्यादा चीज़ें हो गई। नहीं, ये ज़्यादा चीज़ें हैं, आई नो, बट आपके पास टाइम बहुत है। जैसे मैं पहला ही पॉइंटर आपको क्लियर किया था कि डू नॉट रश। अगर कोई भैया कोई आपको कोई बोल रहा है, कोई ट्यूटोरियल आपको बोल रहा है कि आपको 20 दिन में बूट कैम्प करा देते हैं, 1 महीने में बूट कैम्प करा देते हैं, दैट इज़ नॉट समथिंग फ्रॉम द बेसिक लेवल। अगर किसी को आता है, दे कैन गो विद 2 घंटे का वीडियो भी, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, दे कैन अंडरस्टैंड। बट इफ यू आर वांट टू स्टार्ट, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कि रोड मैप अगर आपको फॉलो करना है नए 2026 में कि कौन सी टेक्नोलॉजी आने वाली, कौन सा फ्रेमवर्क चूज करना, कैसे करना है, तो आपको मिनिमम अगर मैं मान कर चलूँ 7 से 8 महीने का टाइम आपको रखना पड़ेगा टू प्रिपेयर योर सेल्फ इन द फुल स्टैक, इन विच मेजर ऑफ द पार्ट विल बी गोइंग ऑन टू द बैक एंड क्लाउड एंड फ्रंट एंड पार्ट, राइट। इसमें फ्रंट एंड में सबसे इंपॉर्टेंट आपका रहेगा जावास्क्रिप्ट, राइट। ऑन व्हेन यू आर डन विद जावास्क्रिप्ट, आप इसमें कोई भी फ्रेमवर्क, कोई भी बैकएंड टेक्नोलॉजी, कोई भी लाइब्रेरी आप यूज कर सकते हैं, राइट। तो आई होप आपको ये रोड मैप आप फॉलो करेंगे, आपको पसंद आया होगा। एंड इफ यू आर हैविंग एनी डाउट रिगार्डिंग, यू वांट टू कनेक्ट, यू वांट टू enroll in some program, link will be in the description, you can check it out from the GFG courses, and you can enroll in this particular program. So all the best for your future and take care. Bye bye.